جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں. آج کی کسان بیٹھک کے اندر ہماری جو پہلی نشست ہے، میں بہت ریئلی پراؤڈ آف اٹ کہ طاہرہ صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اوور ٹو یو طاہرہ صاحبہ، پلیز اپنا تعارف کرائیں اور اپنی بات شروع کریں. اوور ٹو یو. تھینک یو مچ. جی میرا نام طاہرہ رسول ہے اور میں اسکاٹ لینڈ سے آئی ہوں، اور یہاں پر میں نے جو میں مین کام کر رہی ہوں یا کرنے کے لیے طاہرہ صاحبہ کی کوئی کمیونیکیشن میں پرابلم ہو رہی ہے. شوق صاحب آپ بات شروع کریں گے؟ طاہرہ صاحب کی کمیونیکیشن پرابلم ہو رہی ہے کوئی. جی شوق صاحب. اعظم صاحب آپ بات شروع کریں گے ذرا؟ جی سر، ہم تو بس آج سنیں گے جو آپ نے 3 چیزیں کی نا جی، کہ 3 ڈومین کے پیچھے بندہ رہتا ہے، بیوٹی، کوالٹی اور ریئلٹی. تو میرا خیال ہے کہ آج کی جو نشست اینیمل ویلفیئر ہے نا جی، اور اینیمل کی کیئر ہے، یہ بھی ان 3 کے ارد گرد ہے کہ ان میں بیوٹی بھی ہے، کوالٹی بھی، اور ان کے ریئلٹی. ان سے ہم کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں، لرننگ بھی آ رہی ہے. اور مین تو ہم میڈم طاہرہ سے سنیں گے، 2-3 کویسچن پھر ہم ان کے کریں گے کہ ان کے اس ویژن کے ساتھ ٹیکنالوجی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے، اسکول کے پروگرام کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کا کس طرح ہو سکتا ہے، اور ہم جو RAC پہ جا رہے ہیں ان کے اس ویژن کو ہم اپنے گراس لیول پہ کس طرح کرتے ہیں. یہ 3-4 کویسچن میرے ذہن میں تھے. اگر میڈم آن لائن ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ ایک ایک جی کر کے طاہرہ ڈسکس صاحبہ آپ کریں گے. ذرا انمیوٹ کریں گے اپنے آپ کو. وڈ یو پلیز انمیوٹ یور سیلف. اوکے سر. وہ کیا جی ہے کہ بجلی صبح 5 بجے 5:30 بجے سے گئی ہوئی ہے اور میرا ڈاٹا شیئر ہو رہا ہے. آئی تھنک اس لیے کوئی مڈل میں ٹربل ہوئی ہے. تو جی سوری مجھے تو ریئلائز بھی نہیں ہوا کہ میں لائن پر نہیں ہوں، تو میں تو اپنی طرف سے باتیں کی جا رہی تھی، جی تو جی کوئی ابھی بات ریئلائز نہیں، ہوا. کوئی بات جی نہیں. جی جی جی. اچھا تو جی میں بس یہی بات کر رہی تھی. آئی ڈونٹ نو کہاں تک آپ نے میری بات سنی ہے، کہ میں اینیملس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کے لیے یہاں پہ نومبر میں شیلٹر بنایا ہے. تو اس وقت ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے، اسپے نیوٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ویکسین کر کے ریبی فری کیا جاتا ہے. ویسے ان کو جو ٹیٹنس یہ وہ باقی سارے کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں کہ وہ ہیلتھی ہوں، اور یہ سب ہم کر رہے ہیں. تو لیکن کیونکہ ہم انہیں واپس روڈ پہ نہیں چھوڑ پا رہے، تو اس لیے اب ہم سانچری بنا رہے ہیں. تو ڈیسپریٹلی ہم اس پہ کام ہمارا ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت بڑے لیول پر فیصلہ آباد کو، فرسٹ آف آل فیصلہ آباد کو کلیئر کیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے کہا، پتہ نہیں میری آواز گئی تھی کہ نہیں، کہ ہم ہیومنس کو بھی obviously کمفرٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے لائل پور فارمرز مال بھی ہم نے بنایا ہے. تو اس پر بھی ماشاءاللہ سے کافی بڑے لیول پر، سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فارمرز وہ پاکستان میں ہماری سب سے بڑی پریورٹی ہیں، کہ وہیں سے ہمارا کھانا، اناج، ہر چیز وہیں سے ہی آتی ہے. تو اسی لیے اس کا نام لائل پور فارمرز مال رکھا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں انہیں کمفرٹ کرنا ہے، انہیں ہمیں فیسلٹیز اور جو کچھ بھی ہے وہ چاہیے، اس کے لیے ہم اس پہ بہت بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں. تو وہی جیسے میں نے کہا کہ ہیومنز بھی ہماری پریورٹی میں ہے، تو وہاں پر بیوہ، یتیم اور یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کو ہم وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو ہم وہاں پر وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ ڈگری لے کے ایسے ہی نہیں پھریں. اور جابس کے لیے جو کہ کائنڈ امپاسبل ہے ابھی ملنا، تو وہ وہاں پر ان کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ کیسے اپنے سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں، اپنے سیلف بزنسز وہ شروع کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں یہاں پر بہت بڑے لیول پر ٹریننگ دی جائے گی. تو جی اس وقت یہ 2 میرے سب سے بڑے مشن ہیں، تو ان پر اب کام ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. عزیز صاحب میں چاہوں گا آپ اپنے کوشچنس کریں ون بائی ون، تاکہ پھر طاہرہ ان کا جواب دیں. پلیز عالم صاحب. جی سر، کویسچن تو نہیں، ایک تو سر اپریسیشن ہے، اور ہمیں پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اس ایگری مال ٹوریزم پہ میں اور میرا بیٹا سلمان اس کے اسٹیک ہولڈر میں سیکھ رہے ہیں، اور آگے اسی مشن کو اپنے جتنا ہو سکے بچوں میں، کمیونٹی میں پھیلا رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے بات کی نا جی کہ 3 چیزوں کے پیچھے انسان رہتا ہے، کہ وہ بیوٹی ہوتی ہے، کوالٹی اور ریئلٹی.
تو اس سے جو یہ ایک دائرہ سا ہے، ایک سرکل سا ہے ایگری ٹورزم اور لال پور ایگری فارم مال کا، اس میں یہ تینوں چیزیں ہی وہ جو 26 سٹال ہے وہ ایک ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو اینیمل ویلفیئر اور ہیومن ویلفیئر کے حوالے سے میں ذہن میں تھا کہ چونکہ یہ ایک امرجنگ کنسیپٹ ہے نا، اسے اتنے بہترین لیول پہ 2 ڈائمینشن دے کے کہ ہیومن اور اینیمل جو ویلفیئر ہے وہ ساتھ ساتھ چلے. تو میڈم جب اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کے ویژن مشن میں اور ان میں کلچر میں فرق ہوگا، تو ایک تو اڈاپٹیشن کا پوچھنا ہوگا کہ جو اینیمل ویلفیئر ہے، کیونکہ گلوبلی بھی یہ ایگری مال کے یہ 2 جو انیشیٹو ہیں یہ گلوبلی ایک SDGs 2 کو لنک کر رہے ہیں. ایک 2.1 ہے کہ فوڈ اور فارمر کو بہتر کرنا، 2.5 یہ ہے کہ اینیمل کی وہ سپیشیز، پلانٹ کی وہ سپیشیز جو نایاب ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں اس طرح ان کو کنزرو کس طرح کرنا ہے. تو اڈاپٹیشن کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جس طرح اسٹال اینیمل ویلفیئر کا تھا تو وہاں لوگوں کی ٹریفک کا کیا تھا، لوگوں نے کتنے کوشچن کیے، لوگوں نے کتنی دلچسپی ظاہر کی، کیونکہ باقی اسٹال پہ تو رش تھا. تو اینیمل ویلفیئر کے حوالے سے لوگوں کی کیا رسپانس تھا؟ لال پور مال پر ہم نے اسٹالز بھی لگائے. انفارچونیٹلی ہم نے وہاں پر اپنے کیج میں کیٹس اینڈ جی وہاں پر ہم نے وہ رکھا، لیکن وہاں پر اتنا کوئی فارمرز مال پر، اگر یہی آپ کا کوشچن تھا، اگر میں نے صحیح انڈرسٹینڈ کر پائی ہوں، تو وہ اتنا کوئی اچھا رسپانس وہاں سے نہیں آیا ہے. تو وہی ہمارے یہاں پر I don't know, sorry to say یہاں پر لوگ خاص کر اسٹری اینیملس کو لے کے ان کا نہیں ہے کچھ بھی I would say نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. سر کیا آپ کا یہی کوشچن تھا؟ جی یہی کوشچن تھا. لیکن جی اگر نہیں، وہ نہ اس کو ہونے کوئی کے برابر. انٹرپرینورشپ کا کوئی رنگ دے دیا جائے نا، جس میں لوگوں کو یہ ہو کہ یا ہماری کوئی اکانومی بہتر ہو رہی ہے یا انوائرمنٹ امپیکٹ ہے یا سوسائٹی میں کوئی اس طرح کا اگر ہو جائے تو شاید یہ، کیونکہ ویلفیئر کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی انسانوں کی ویلفیئر نہیں لیکن جانوروں کی کیا ہے. لیکن ایک طرح یہ میسج ساتھ ساتھ چلتا تو ہے نا کہ چلو بندہ جو کہے جی ہیومن ویلفیئر، تو بندہ اسے کہے جی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی آپ ادھر آ جائیں. جی سر وہ بھی آپ کی بات صحیح ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک قسم کا سیریسلی اگین سوری ٹو سے ایک تھپڑ کی طرح میرے منہ پہ ہمیشہ لگتا ہے کہ تم جانوروں کا کر رہی ہو، انسان رول رہے ہیں. سو ایز اے جسٹ سیڈ میں انسانوں کا بھی کر رہی ہوں، میں جانوروں کا بھی کر رہی ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ I don't know، میں بہت نیگیٹو شاید ہو رہی ہوں، لیکن انہیں شاید صرف یہی فارمر مال انسانوں کے لیے ہی بنا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ میں میرے شیلٹر پر ہیومن کے لیے میں کیا کیا کچھ کرتی ہوں سارا دن. تو اس پھر بھی جی یہ جو لیکن وہی جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ان کو اگر یہ بات بتائی جائے کہ ہاؤ امپورٹنٹ یہ جانور ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. ابھی ویسے آپ نے یہی کہا ہے کہ دیکھیے اب اگر اسٹرے ڈاگس، میں تو اب اس بات پہ پکی ہو گئی ہوں کہ میں نے ایک بھی ڈاگ روڈ پر نہیں چھوڑنا ہے. جو ان کی مزری ہے، جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، تو یہ سارے میری سانچری میں جائیں گے. لیکن سر کبھی ان لوگوں نے سوچا ہے کہ اگر یہ میں سارے کی ساری ڈاگ روڈ سے ہٹا لیتی ہوں تو کیا بننا ہے؟ اس ملک کے ایکو سسٹم کے لیے یہ ڈاگس چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ ریٹس ہاؤ ڈینجرس دے آر، ماؤسز اور باقی بھی جو سارا ہے جو باہر ہمارا گند کھاتے ہیں یہ. تو لیکن I don't know maybe they learn hard way. تو سمجھاتے ہیں، بہت زیادہ سمجھاتے ہیں. اگر آپ نے میرے انٹرویوز سنے ہیں، بتاتی ہوں کہ ہائی امپورٹنٹ دے آر اور ان کا کس طرح سے ہمیں انہیں کرنا ہے. اور یہی جب آپ نے وہ بات کی ہے کہ ان کو اڈاپٹ آگے کروایا جا سکتا ہے یا اس بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، بلیو اور ناٹ لوگ آتے ہیں، ان کا کوشچن ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی بریڈ ہے. ہمیں جرمن شیپرڈ چاہیے، ہمیں ہسکی چاہیے، ہمیں وہ لمبے بالوں والی بلی چاہیے. وہ آتے ہیں، ایک دو دفعہ ان کو جب بہت بٹھا کے پیارا لیکچر دیا، ان کو سمجھایا، وہ لے کے گئے ہیں، وہ واپس لے آئے ہیں. دوسرے تیسرے دن ان میں کوئی اسٹوپڈ ایکسکیوز دے کے وہ ہمیں واپس دے گئے. I'm glad کہ وہ واپس دے گئے ہیں، کہیں باہر پھر سے نہیں پہنچ گیا. تو لیکن I'm sorry to say just now یہی ہو رہا ہے. پورے میں
इंशाल्लाह जोश से जोर से मैं लगी हुई हूँ कि लोगों का माइंड सेट चेंज करूँ इन इस पुअर बच्चों के लिए कि ये भी जानदार हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है और कोई रीजन है ये क्यों है। तो देखिए इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, जिस जोश से मैं लगी हुई हूँ कि मैं इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगी। जी तायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि आलम साहब बात शुरू करें। कभी नहीं हुआ इस तरह दुनिया में कि आदमी ने किसी डेडिकेशन से काम शुरू किया हो, बात शुरू की हो और फिर उसको सब लोगों ने समझ लिया हो। बहुत वक्त लगता है। अपने शौक साहब मेरी बात सुन रहे हैं, आजम आप गवाह रहिएगा इस बात की, हमारी दोनों की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है। 2005 के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2005 के अंदर जब मेरी मुलाकात होती है शौक साहब से, तो हम एक इवेंट करते हैं और वो CIT के बिल्डिंग के बाहर F10 के अंदर बाकायदा कनात लगा के उसके पीछे लिखा होता है E-Village। मैं चाहूँगा शौक साहब मेरी बात को कंफर्म करें। और आजम सुबह से लेके शाम तक, यानी हमने दोपहर खाना ही वहीं खाया, हमने पूरे दिन वही बातें की जो आज मैं अमली शक्ल देख रहा हूँ। मुझे अभी तक याद है। हमारे साथ बड़े बड़े महकमों के लोग बैठे थे, सरकारी महकमों के अफसर बैठे थे और शौक साहब, जब मैं जॉब में था, मैं FIE में जॉब करता था, तो जो तारा आपको समझाने की बात है, मेरी बहुत लंबी एक मेरी काविश है, हम्बल सी काविश है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने कभी इंसान से कुछ नहीं मांगा आज तक। यकीन जाने आप तारा, मैंने हमेशा खुदा से मांगा है और मुझे मिला है। जो मैंने बात की ना, ब्यूटी रियलिटी और क्वालिटी रियलिटी, आई ऑलवेज बिलीव इन रियलिटी। और रियलिटी ये है कि आप अपना काम करके चले जाए इस दुनिया से, बस ये रियलिटी है। जितने लोगों ने भी काम किया दुनिया के अंदर, वो आज मौजूद नहीं है हमारे अंदर। आपका क्या ख्याल है, जब इतनी बड़ी बड़ी अकल की बातें करते हैं, ये बशारी साहब नहीं करते थे, ये बड़े बड़े लोग नहीं करते थे। मतलब अगर मैं बात करूं कि अख्तर हमीद खान नहीं करते थे, वो यही बातें करते थे, लेकिन वो एक बुनियाद बना के चले गए थे। आज हम उस बुनियाद का फायदा उठा रहे हैं। तो जो हम ये बातें कर रहे हैं, अच्छा उनकी बातें किताबों के अलावा कहीं है नहीं, किताब पढ़ने समझ में आती हैं, लेकिन हमारी बातें इस पर रिकॉर्ड हो रही हैं, क्लाउड पे जा रही हैं, वेब इस पे जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसकी तरफ इशारा आजम कर रहे हैं अभी, कि हमें इस एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। ओवर टू यू तारा, प्लीज। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और रिकॉर्डिंग के अलावा सर हम प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं। ये भी एक, जैसे आपने कहा कि उनकी बातें उधर हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे जाने के बाद मैं जो छोड़ के जाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल होगा फ्यूचर के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और मैं सच में मैं डिसहार्ट नहीं हो रही हूँ, मैं जाने वाली भी नहीं हूँ, मैं भागने वाली भी नहीं हूँ। तो बस वैसे ही जो इन्होंने जिस हिसाब से क्वेश्चन किया था, तो मेरा ख्याल है उस वक्त उसका यही जवाब बन रहा था कि नहीं, इस वक्त नहीं, कोई स्पेशली इन एनिमल्स को लेके कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आप बिलीव करोगे कि अच्छा, ये जो मैं फॉर्मल एक आप तारा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। जी ये जी जी क्या वजह है कि अगर लेट्स से अमेरिका के अंदर, लेट्स से बॉस्टन के अंदर एक कुत्ता जा रहा है, वो लंगड़ा रहा है, जी तो उसके जो बच्चे हैं ना, बड़े तो खैर भागते हैं उसके पीछे कि उसकी मदद करें, छोटे बच्चे हैं ना, वो भी उसको पकड़ के कोशिश करते हैं, उसको उसको दवाई लगा दें या उसको कहीं ले जाएं या कुछ करें। लेकिन वही कुत्ता अगर मतलब है कि डॉग जो है वो एक इस्लामाबाद की सड़क पे जा रहा है, तो जो हमारे जी बच्चे उसको बट्टे मार रहे हैं। अच्छा, अब इससे बच्चों का कसूर नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी, ये बिल्कुल किसी ऐसी बिल्कुल। सोच का कसूर है जिसको हमें कंट्रोल करना है। जी उसने जी 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 मुझे अभी तक याद है कि जब मैं छोटा था, तो हमारे जहाँ हम रहते थे पिंडी के अंदर, तो बहुत ही स्ट्रे डॉग फिरते थे। तो मेरे सामने मैं देखता था कंटोनमेंट का बंदा आता था बंदूक लेके, और अब बच्चे पीछे लग जाते थे कि अब ये गोली मारेगा किसी कुत्ते को ना, और बकायदा वो किसी कुत्ते को पकड़ के खंबे से बांध के यूज टू शूट द डॉग। लेकिन वो मारते थे पागल कुत्तों को, कि जो कुत्ते पागल सही होते थे, उसके सही। मुंह से झाग निकलता था। तो ये जो माइंड सेट है हमारे मुल्क में, बच्चों की बात कर रहा हूँ, इस पे आप क्या जी इसके माइंड सेट को चेंज कर सकती हैं? प्लीज ओवर टू यू। सर, सबसे पहले तो ये जो हम बड़े हैं ना, आपने क्या नहीं सुना कि माँ हमेशा बच्चे को सिर्फ एक बात कह के डराती है, डॉगी आ जाएगा, मान बिल्ली आ जाएगी। क्यों?
क्यों हम इनको इनसे डराते हैं? और फिर जब आप देखिए कि माँ बच्चे के साथ बाहर रोड पर जा रही है, तो सबसे पहले वो माँ वो खौफ खाती है, वो उसका ड्रामा रोड पे हो रहा होता है कि बस पता नहीं ये मुझे अलाइव खा जाएगा। अगर बाप है बच्चे के साथ, तो उसने पत्थर-वत्था कोई उठाया, घुमा के टाँग उनको मारनी है, तो बच्चों ने फिर यही सीखना है ना, उनके शुरू से माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि देयर समथिंग, ये बाड हैं, ये बुरे हैं, ये कुछ कुछ डेंजरस हैं, इनको इनको खत्म होना चाहिए, इनको मतलब कि और जब ये बच्चे ये माँ-बाप को करते देखते हैं, फिर वो ये सारा कुछ करते हैं, गले में रस्सी डाल ली, उठा के पत्थर मार दिया, कोई सोटी लेके उनके पीछे पड़ रहे हैं, तो हम सब एडल्ट्स वहाँ पे फिर रहे होते हैं। क्या हम में से कभी किसी ने रोका है बच्चे को कि बच्चा ये क्यों ज़ुल्म कर रहे हो आप, ये गलत है, ये जानदार हैं? ये वजह है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। हम ये जो एडल्ट्स हैं ना, ये जो बड़े लोग हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है, हम इनका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते, वो गुनाह, सवाब, हराम, हलाल, फरिश्ता नहीं आएगा, ये वो फलां, वो हम नहीं चेंज कर सकते, मैंने ट्राई की है। लेकिन हम ये जो हमारी नई जनरेशन है ना, बस इस वक़्त मैं एक्सट्रीमली बिज़ी हूँ अपनी सांचरी को लेके, ये वो चीज़ों को लेके व अदरवाइज़ और ये कोरोना मुझे स्कूलों तक जाने भी नहीं दे रहा है, वरना मैं वहाँ से यही एम करके आई थी कि मैंने हर स्कूल में जाना है, वहाँ बच्चों को क्लासेस देनी है, वीडियोज़ दिखानी है कि जब आप सिर्फ़ एक पत्थर मार के आप तो घर चले जाते हो और वो डॉग भी बेचारा कोई ची-ची करके इधर-उधर छुप जाता है, उसके बाद की वीडियो उन बच्चों को दिखानी है कि लुक व्हाट दे गो थ्रू। किन हक क्या उनके साथ फिर बाद में बनता क्या है कि सागनी वो जो एक पत्थर था उससे वो टाँग टूटी या ज़ख्म हुआ, फिर उसमें कीड़े पड़े, उसमें लंबी तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को मेंटली उनको ये हमारे इस्लाम के लिए भी कि हमारा इस्लाम एक्चुअली रियल में कहता क्या है। ये जो हम फ़ॉल्स हमारी ये बातें हैं गुनाह सवाब वाली, हराम हलाल वाली, वो उनको बताएँ, इनकी इम्पोर्टेंस बताएँ। तो ये चीज़ों पे तो मैं डेफ़िनेटली इंशाल्लाह मेरा सबसे पहले सबसे बड़ा एम ही ये था। तो एक कोरोना, एक ये थोड़ी-सी पाकिस्तान की जो जो अब काम ईज़ी नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर एक और भी मसला है कि कुछ भी ईज़ी नहीं हो पाता है। तो उसमें मैं थोड़ी एक्सट्रीमली बिज़ी हुई हुई हूँ। जैसे ही अब स्कूल्स खुलेंगे, थोड़ा कोरोना का ईज़ी होगा, तो मेरा सबसे पहला एम ही यही है कि मुझे आने वाली जनरेशन को अगर हमें कारोबार में उनको आगे बढ़ाना है, ये जो हम सारा फार्मर्स मॉल ये वो शुरू कर रहे हैं, तो हमें ये भी हमारा फ्यूचर है। इस साइड पे भी हमें इन्हें मेंटली वो करना है। हेलो? हेलो? जी आवाज़ आ रही है। जी आवाज़ जी, आ जी, रही है, जी। बिल्कुल आवाज़। जी, ठीक। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मुझे कुछ कहने की इजाज़त है काफ़ी साहब। प्लीज़ गो अहेड जी, प्लीज़ गो अहेड जी। मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आला रसूल ने जिस इज़्ज़ो हिम्मत से ये ट्रेंड सेट करने की कोशिश की है और ये बाहौसला खातून है और इन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान में तहरीक को शुरू किया है, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद में इनका जो प्रोजेक्ट है ये अपनी नवीयत की बहुत मिसाल है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले 1 साल में जो चेंजेस आई हैं, 6 महीने में बिलखुसूस, हुकूमत इस काम पे आमादा हो गई। और पंजाब में बिलखुसूस मैं कल भी कह रहा था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ऑर्डर जारी किए हैं कि जो ये बात आ रही है एनिमल वेलफेयर की, इसको हमने नाफज करना है। और इसके पीछे ये जो लोग हैं, ये अदारे जो हैं जो एनिमल वेलफेयर के हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और हम दाद देंगे कि इस सारे काम में मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ये जो फाउंडेशन है, ये सहारा रसूल फाउंडेशन है और जो दूसरे दीगर अदारे हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये लीडिंग रोल अदा करेंगे। और हुकूमत ने इसके लिए 148 मिलियन रुपए 2 साल के लिए बजट मांगा है सूबाई हुकूमत ने। लेकिन जो है ये फाउंडेशन वालों ने, ये तारा वालों ने हुकूमत से भी ये कहा है कि आप हमें क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस काम को फैलाएंगे। और ये पहले फैसलाबाद में ये रेबीज फ्री इसको इनका अज़म है। और हम सब लोग, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इनका जो ये अज़म है पाकिस्तान को रेबीज फ्री करने का और फिर जानवरों से मोहब्बत का, ये एक नई राह देगा। सोसाइटी में भी तब्दीली आएगी। और मैं इनसे ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल दिल बर्दाश्ता नहीं होना।
آپ نے जिस शोबे को पकड़ा है, जिस काम को पकड़ा है, ये दूसरों के लिए आपने रोल मॉडल बनना है। चलें, हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस काम पे लगेंगी और तब्दीली जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया। इसका जवाब देना चाहेंगे आप प्लीज? सर मुझसे कहा है, आवाज ज्यादा क्लियर नहीं, आप मुझसे कह रहे हैं? जी आप जवाब दें इनकी। जी सर, इस पे डेफिनेटली शौक सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज्यादा ये इन्होंने मेरी मदद की है। तारिक तनवीर हैं, उन ये दो लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा जो सीरियसली एक्सट्रीमली क्रेजीली जो मेरा माइंड सेट है ना, वो सबसे पहले मैंने फैसलाबाद को क्लियर करना है। अभी भी कराची में है, वहां पर मैंने फ्री हैंड्स दिए हुए हैं कुछ लोगों को कि वो जितना चाहे लाइक 5 एनिमल्स अ डे 5 लाख वो कर ले, मैं पे करती हूँ, मैं करूंगी, ठीक है, कोई उनसे क्वेश्चन नहीं है मेरा। इसी तरह से डेरा गाजी खान या इधर उधर मैंने कुछ लोगों को अभी थोड़े से मतलब लेवल पे मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा जो मेन फोकस है वो फैसलाबाद है। इंशाल्लाह विदिन मंथ्स मैंने फैसलाबाद को बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर करना है। सिर्फ इस वक्त जो मुझे मसला पड़ रहा है, मुझे जगह के लिए पड़ रहा है। जगह हम 100 एकड़ ले चुके हैं, लेकिन 100 एकड़ की जो बाउंड्री है ना, वो आपको भी पता है इजी नहीं होनी है, और बगैर बाउंड्री के वहां पर वो नहीं हो सकता, इनको वहां रखा नहीं जा सकता। अच्छा, तो उसके लिए मुझे अभी कह लिए 10 एकड़ 20 एकड़ 25 एकड़ मुझे ये चाहिए स्टार्ट लेने के लिए। तो इस वक्त मुझे ये चीज होल्ड बैक करके रखी हुई है। बट इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द, आई थिंक कल कोई बात कहीं पर पक्की होने जा रही है, तो इंशाल्लाह एनीवे तो फैसलाबाद को हमने फ्री करना है। ये सारे डॉग्स और ये सारे स्पे न्यूड, इनकी आगे ग्रोथ रोकनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, इनको वैक्सीनेट करना है, सारा करना है। उसके साथ ही फिर मैंने मूव ऑन करना है, चाहे मुझे कैंपिंग लगा के करना पड़े। मैंने हर शहर में पाकिस्तान के मैंने इंशाल्लाह ताला मेरी टीम के साथ जाना है। वहां पर यही होना है, बहुत बड़े लेवल पर डॉग्स पकड़े जाएंगे, उनको स्पे न्यूड करके, तो वहीं पर ही कोई तो वहां पर होगा, कोई गवर्नमेंट का, कोई काउंसलर, कोई वडेरा, कोई तो होगा जो मुझे वहां पे जमीन देगा कि मैं वहां पर उन जो जानवरों को मैं रेस्क्यू करके या जिनको मैं ट्रीट कर चुकी हूँ वहां पर सॉरी। तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी, तो मुझे काइंड आइडिया हो जाता है कि कौन प्योर एनिमल लवर है। तो उन लोगों के उसी एरिया में, ये मैं अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ, उनके स्पुर्द वो करके वो वाला शेल्टर, तो मैं अगले शहर मूव कर जाऊंगी इंशाल्लाह। तो आप लोग जल्द एक और इंटरव्यू रखिए, ये मेरा आप लोगों से वादा है कि इंशाल्लाह। मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मैंने कोई years and years मैंने नहीं लगाने हैं, और इंशाल्लाह मैंने पूरे पाकिस्तान को क्लियर करना है। मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोल रही, बट मुझे पता है अल्लाह ताला मेरे साथ है, उसकी मदद आई कैन टेल के खालिद शौक लोग जैसे, तारिक तनवीर लोग जैसे, आयजा जैसे, ये लोग मेरे साथ हैं, और मिरेकली मेरे साथ अल्लाह ताला का वो हो रहा है। मुझे खुद बलीव नहीं हो रहा है जिस स्पीड से माशाल्लाह मेरा काम चल रहा है, और जिस तरह की मुझे गायब से मदद मेरा परवरदिगार दे रहा है। तो इंशाल्लाह वेरी सून ये होगा। जी मेरा ख्याल टाइम खत्म हो रहा है, जाफरी साहब क्लोज करें, 8:30 हो गए हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह कल फिर इसी बजे 8 बजे शामिल होंगे। और कल शौक साहब, मेरा ख्याल ये है कि आजम साहब, अगर आप कल 8 बजे कोई एक दो चीजें दिखा सकें कि आप RIC को पूरा स्टेज 0 से स्टेज 1 तक लेकर आए। ठीक है आजम साहब? ठीक है सर, थैंक यू। सर जिस तरह कहा है ना कि स्कूल और ये जो कम्युनिटी लेवल पे, तो इसमें सर अगर जिस तरह हमारा स्कूल प्लस है कि इसमें ऑलरेडी स्कूल भी अटैच हैं, इसी में कोई एक कोर्स रख लेते हैं। एक तो हर बंदा चाहता है ना जी कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हम इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कोई कोर्स रख के उन्हीं टीचर्स को, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और सोशल वर्क में इसी जो एनिमल वेलफेयर को रखते हैं। और जो हमारा RAC जो तकरीबन 150 प्लान में है,
उसी विलेज सेंटर पे हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग इस पैशन के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको शायद बूस्ट अप नहीं किया जा सकता या स्टेशन नहीं की जा सकती। उसे हम आप कह लें कि डिजिटल जो एनिमल वेलफेयर है, कि जिस इलाके में या जिस गांव में जो हो वो कंसल्टेंसी के लिए फैसलाबाद वाले सेंटर से ले और वो नीचे विलेज लेवल पे वो आउटरीच हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो अनाउंस करता है ना वो फार्मर करता है स्पेड हॉकी जी कि वो हल्का कुत्ता आ गया जी, पकड़ लो जी, मार दो। तो अगर उनकी काउंसलिंग की जाए कि यार अभी ये उस नेज पे नहीं किसी आप शूट करें, आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, आप इसे घर रखें, इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो ये स्कूल प्लस और RAC भी इस मिशन विजन को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर सकता है। तो कल इस पे बिल्कुल मजीद ठीक है डिस्कस कर लेंगे जी। जी, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। ये हम जो हमारा स्कूल प्लस हो गया है, मैं इसमें अपने स्कूलों के अंदर भी हफ्ते में एक दिन हम ये रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जब इस पर रबानी साहब, मैंने नईमुल्ला वड़ैच को अपना फोन करने की कोशिश किया, मैसेज भी दिया है,
اس سے میرا فون اٹھایا نہیں ہے. اس کو میں نے جو فیصلاباد میں جو میونسپل آفیسر ہے تو جو میں نے آپ کو رپورٹ کر دی ہے اس کو میں نے کل 2 دفعہ فون کیا ہے اور اس پہ واٹس ایپ پہ کروایا ہے. تو کہیں نمبر تو کوئی اور نہیں ہے, وہ دیکھ تو رہا ہے چیزیں. تو یہ کائنڈلی پھر میں نے آپ کو رپورٹ کر دی.